A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos we discussed and we revised the two important chapter of your syllabus, that is in rectification of the error and capital revenue items. And almost we revised each and every topics and important questions related to the rectification of the error, which include the two types of the error, that is one-side error and two-side error. And thereafter we discuss the capital revenue items, and you know very well the capital and revenue items are classified on the basis of the receipts and expenditure. And on the basis of the receipts, we can say that capital receipts and revenue receipts are classified, and on the basis of the expenditure, there are basically two things, then is capital expenditure and revenue expenditure. So in today's video we will move to the next topic, and the topic is computerized accounting system. लास्ट की कुछ वीडियोस में हम लोगों ने इसको भी डिस्कस किया है डिटेल में कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है. एंड यू नो वेरी वेल, ड्यू टू द कोविड सिचुएशन सीबीएसई ने आपके सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया. सो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट आपके सिलेबस में इस समय प्रेजेंटली प्रेजेंट है, और बाकी जो उसका जो प्रैक्टिकल ओवरव्यू था लाइक एन टैली एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू द अकाउंटिंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस. That's why at the end of your syllabus कुछ समरी इस चैप्टर की आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज एन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. ओके, सो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से हेडिंग्स पढ़ने हैं पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं. ओके, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो ड्यू टू द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ योर सिलेबस रिगार्डिंग द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. So in the computerized accounting system, we have to discuss about the number one is concept of computerized accounting system. सबसे पहले हमें इसमें डिस्कस करना है what is the concept of computerized accounting system. ये मैं पूरा समरी बता रहा हूँ इस चैप्टर का, एक कह सकते हैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ इस चैप्टर का, ताकि आपको ये आइडिया हो कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी हेडिंग्स एंड कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करना है, विच विल बी आस्क्ड इन योर अर्लियर एग्जामिनेशन. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इज an accounting information system that process the financial transactions and events as per generally accepted accounting principle to produce reports as per user requirement is referred to as a computerized accounting system. So in short way we can say that the computerized accounting system means an accounting system that processes the financial transaction and events as per GAAP. GAAP means generally accepted accounting principle. As per GAAP, to produce report as per reports as per requirement, यानी अकाउंटिंग का जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग बेसिकली अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द
रिक्वायरमेंट हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द गैप, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं और उससे बेसिस पे हम रिपोर्ट को जनरेट करते हैं. द सेकेंड टॉपिक ऑफ computerized accounting system which we have to discuss about it, that is an features of computerized accounting system. So what is the feature of computerized accounting system? Let's we discuss about it. So the first feature is computerized accounting system offers the following features, that is an ऑनलाइन इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डाटा. ऑनलाइन जो आज के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, दैट इज एन ऑनलाइन स्टोरेज, यानी हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन और इनपुट कर सकते हैं, डाटा को इनपुट भी कर सकते हैं कहीं भी बैठे. सो द फर्स्ट फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑनलाइन स्टोर करना एंड ऑनलाइन डाटा को इनपुट करना एज पर द रिक्वायरमेंट. Okay, so online input and storage of accounting data. अगर हमें डाटा फीड करनी है, so we can easily input and store the data online. Okay. The second feature of computerized accounting system is print out of purchase and sales invoice. यानी हम टेक अ प्रिंट आउट ऑफ, किसका प्रिंट आउट ले सकते हैं? प्रिंट आउट ऑफ परचेज एंड सेल्स इनवॉइस, यानी जो परचेज इनवॉइस है या सेल्स इनवॉइस है, इसका हम क्या ले सकते हैं? प्रिंट आउट ले सकते हैं. सो इट इज अ सेकेंड फीचर ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. द थर्ड वन इज अ लॉजिकल स्कीम फॉर कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन, and every account and transaction is assigned unique code. Every transaction is assigned, यानी बिजनेस के जो भी अकाउंट हैं and as well as every account and we can say that and transaction, बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं और जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? एक यूनिक कोड प्रोवाइड करते हैं. इज प्रोवाइडेड और यूनिक कोड, उनको एक यूनिक कोड प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम उस अकाउंट को इजीली ट्रैक कर सकें और उस ट्रांजेक्शन को इजीली असेस कर सकें. द फोर्थ फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम वी easily codified the account. It means it is easy for the codification of accounts. इससे हम accounts को क्या कर सकते हैं? Codify कर सकते हैं. The next one is a grouping of account is done from very beginning. इसमें accounts को हम easily group कर सकते हैं. Group का मतलब है कि similar nature of the accounts को हम easily group कर सकते हैं. So these are the feature as well as the benefit of the computerized accounting system. Okay. So this next one is a अकाउंट्स को कोडिफाई करना, कोड प्रोवाइड करना, जिसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये थर्ड फीचर को ही सपोर्ट कर रहा है कि इसमें हम ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं? कोडिफाई कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ फीचर इज ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी हम अकाउंट्स को ग्रुप भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. एज वेल एज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बोला हुआ है, इंस्टेंट रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट. विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हम तुरंत का तुरंत इंस्टेंट रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट, यानी हम मैनेजमेंट के लिए एक क्विक रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं इमीडिएटली एट देयर डिमांड. जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, लाइक स्टॉक स्टेटमेंट. अगर मैं स्टॉक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने मैनेजमेंट को कि हमारे वेयर हाउसेस में कितने स्टॉक रिमेन्ड हैं. ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे लेजर्स के कितने का लेजर के क्या बैलेंसेस चल रहे हैं.
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली प्रिपेयर कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से हम ग्रॉस प्रॉफिट एंड पीएल अकाउंट के बेसिस पे हम नेट प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन हम अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी मैनेजमेंट के लिए अगर हमें कुछ भी चीजें इमीडिएटली प्रोवाइड करनी हो, इंस्टेंट रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट लाइक अ स्टॉक डिटेल, स्टॉक के बारे में प्रोवाइड करना है, स्टॉक स्टेटमेंट जिसे कह रहे हैं, स्टॉक का स्टेटमेंट प्रोवाइड करना, ओके, एज वेल एज बैलेंसेस ऑफ ट्रायल, बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स जितने मेंटेन हो रहे हैं, लेजर अकाउंट, उनके लेजर अकाउंट के बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। एज वेल एज हम जीएसटी रिटर्न के बारे में प्रोवाइड कर सकते हैं, आईटी रिटर्न के बारे में अपने मैनेजमेंट को बता सकते हैं कि हमने कितना जीएसटी पे किया है, कितना आईटी रिटर्न, क्या क्या फैसिलिटी चल रही है। पेरोल रिपोर्ट, यानी हम अपने एम्प्लॉयज को जो भी पे कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट इमीडिएटली प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि आपको उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन सी दैट दिस इज द basic information regarding the computerized accounting system. So you can see that the basic concept of computerized accounting system is an accounting system that processes the financial transactions and events as per the GAAP to produce the reports as per the requirement. यानी कि एक ऐसा accounting system है जिसमें हम business के जो भी financial transaction and events हैं उनको गैप के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और उनसे रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और फीचर्स की बात करें तो उसके कई सारे फीचर्स हैं। यू नो वेरी वेल, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हम डाटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, इनवॉइसेस के प्रिंट आउट्स ले सकते हैं, ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंट्स को यूनिक कोड प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट, और अकाउंट्स को उनके नेचर एंड बेसिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर उनको ग्रुप कर सकते हैं, और मैनेजमेंट के लिए इंस्टेंट रिपोर्ट, इमीडिएटली रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक एन स्टॉक स्टेटमेंट, लेजर बैलेंसेस, जीएसटी रिटर्न, आईटी रिटर्न एंड पेरोल रिपोर्ट्स। पेरोल रिपोर्ट्स का मतलब कि बेसिकली बताना कि हम अपने एम्प्लॉयज को कितना पे कर रहे हैं, कैसे पे कर रहे हैं, कैसे उनकी सैलरी डिडक्ट कर रहे हैं, व्हाटएवर एंड व्हाटएवर। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट topic. The next topic of the computerized accounting system is a basic requirement. What are the basic requirement of computerized accounting system? यानी computerized accounting system के लिए हमें basic requirement की क्या जरूरत पड़ेगी? Okay? So the next topic will be a basic requirement regarding the computerized accounting system. So if we are talking about the basic requirement regarding the computerized accounting system, so we can say that every computerized accounting system has a two basic requirement. The number one is an accounting framework. Number one will be a accounting framework, and number two will be a operating procedure. Operating procedure. Okay, so these are the two basic requirement of computerized accounting system, that is an accounting framework, and number second is an operating procedure. If you are talking about the accounting framework, so it consists of the set of principle. It is a set of principle, coding and grouping, coding and grouping structure of accounting, structure of accounting. And with the help of the accounting framework, it is a first requirement of computer accounting system. It is a set of the principle, coding, grouping and structure of the accounting. यानी accounting का एक ऐसा framework जिसमें हम principle का, code का, group का एक structure create करते हैं, like an organization
विच इज नोन एज एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। यानी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में सबसे पहले हमें चाहिए अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, एक डाटाबेस चाहिए, एक लेआउट चाहिए कि आपके यहाँ कौन से प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, उन प्रिंसिपल की कैसे कोडिंग की जाएगी, ट्रांजेक्शन्स की, जो हमारे अकाउंट्स हैं उनके कौन कौन से ग्रुप क्रिएट किए जा सकते हैं अकाउंटिंग की। सो दीज आर द अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। सेकंड वन इज द ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इट इज अ वेल डिफाइंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर blended suitability with the operating environment of the organization. If we are talking about the operating procedure, तो आप नाम से ही clear है, procedure step by step with the help of the operating procedure we find out the sequence how we will operate the computerized accounting system. So operating procedure is a sequence by which we identify, we find out the suitable procedure, suitable sequence for the computerized accounting system. The use of computer in any database oriented application have four basic requirements as mentioned: front end interface, back end database, data processing and reporting system. So अगर हम accounting operating procedure की बात करें तो उसमें basically 4 requirement होती है. The number one is a front end interface, number second is a back end interface, third one is data processing, and number 4 is a reporting system. So ऑपरेटिंग प्रोसीजर का जो सबसे पहला नंबर 1 रिक्वायरमेंट है दैट इज एन फ्रंट एंड इंटरफेस. इट इज एन इंटरेक्टिव लिंक बिटवीन द यूजर्स एंड डाटाबेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर थ्रू विच द यूजर कम्युनिकेट टू द बैक एंड इंटरफेस. यानी फ्रंट एंड इंटरफेस एक ऐसा इंटरेक्टिव लिंक है, इट इज एन इंटरेक्टिव लिंक between users and database. ओके, जिसकी बेसिस से यूजर्स और डाटाबेस के बीच में एक इंटरेक्टिव लिंक है जिससे हम फ्रंट एंड इंटरफेस कहते हैं. और इसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द फ्रंट एंड इंटरफेस की हेल्प से यूजर कम्युनिकेट टू द बैक इन डाटाबेस. वो जो उस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का जो बैक इन डाटाबेस है उसके साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है. द सेकेंड वन इज अ बैक इन इंटरफेस इज इट इज अ डाटा स्टोरेज सिस्टम that is hidden from the users and responding to the requirement of the user to the extent the user is authorized to access. यानी एक डाटाबेस है, कह सकते हो बैक एंड इंटरफेस एक डाटाबेस है जो सिक्योर्ड होता है. इट इज एन डाटा स्टोरेज सिस्टम, एक डाटा स्टोरेज सिस्टम है जो कि हिडन होता है फ्रॉम द यूजर्स. जो उस सिस्टम को, इस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को जो यूज कर रहे हैं उनसे वो हिडन होता है, सबको नहीं अवेलेबल होता है. उन्हीं को अवेलेबल होगा डाटा जो उसके लिए अथराइज्ड होंगे, जो उस रिक्वायरमेंट के लिए मांग करेंगे. जैसे मैंने कहा कि मुझे किसी बिजनेस का सेल रिपोर्ट चाहिए. अगर सेल रिपोर्ट चाहिए तो सेल रिपोर्ट के लिए बेसिकली हमें इस चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि तो डाटाबेस सिस्टम जिसे हम बैक इंटरफेस कहते हैं, तो एक तरह का डाटाबेस सिस्टम है. यानी वही यूजर्स उस डाटा को एक्सेस कर सकता है जिसके पास उसका एथोराइजेशन. इसीलिए बैक एंड इंटरफेस होता है. यानी फ्रंट एंड इंटरफेस का मतलब होता है यूजर और डाटाबेस के साथ एक इंटरेक्टिव लिंक होती है और जिसके हेल्प से यूजर क्या कर सकता है, बैक एंड इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है. क्योंकि फ्रंट एंड इंटरफेस ही क्या करता है, बैक एंड इंटरफेस से डाटा लेकर यूजर्स को प्रोवाइड करता है. और बैक एंड इंटरफेस फ्रंट एंड इंटरफेस को डाटा तभी एक्सेस करने को देता है जब वो यूजर्स जो उस डाटा की डिमांड कर रहा है
वो उसके लिए अथराइज्ड होगा। द थर्ड वन इज अ डाटा प्रोसेसिंग. It is a sequence of action that are taken to transform the data into the decision useful information. यानी डाटा प्रोसेसिंग एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन, सीक्वेंस ऑफ एक्शन. यानी डाटा प्रोसेसिंग इज एन सीक्वेंस ऑफ एक्शन that are taken to transform the data into decision useful information. यानी डाटा प्रोसेसिंग से हम लोग क्या करते हैं, हम डाटा को एनालाइज करते हैं, डाटा को कह सकते हो कन्वर्ट करते हैं एज एन इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं. लास्ट वन इज एन रिपोर्टिंग सिस्टम. इट इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट द रिपोर्ट. यानी ये क्या होता है, एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन एज एन रिपोर्ट प्रिपेयर होकर आ जाती है. जैसे कि अगर आपको कोई रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट का पहले नीड क्या है, उस नीड के अकॉर्डिंग एक फॉर्मेट होगा जिसपे वो रिपोर्टिंग सिस्टम ऑटोमेटिक जो डाटा प्रोसेसिंग होगा, जो भी इंफॉर्मेशन आई उस इंफॉर्मेशन को एज ए रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट कर देगा. ओके, सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम व्हिच इंक्लूड टू थिंग्स, accounting framework and operating procedure. An accounting framework is a set of principle, coding and grouping and structure of the accounting, and operating procedure is include the front end interface, back end interface, data processing and reporting system. Okay, so next one is let's we move to the next topic of the computerized accounting system is the basic information related to the computers in accounting. As you know very well, if we are talking about the computerized accounting system, so the next one is a comparison between manual and computerized accounting. The comparison between manual and computerized accounting. So accounting by definition, it is a process by identifying, recording, classifying and summarizing financial transaction to produce the financial reports for their ultimate analysis. यानी अगर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम के बीच में कंपैरिजन करें, सो वी कैन से दैट कि अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो वी कैन से दैट कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्योंकि मैनुअल काम करना और विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर से काम करना, दोनों में डिफरेंसेस होते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. So what are the difference between the manual and computerized accounting system? Let's we discuss about it. So पहला जो उसमें बेसिस है वो है आइडेंटिफाइंग, जो स्टेप बाय स्टेप से है. जैसे आप जानते हैं, अगर हम इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे डिफरेंसेस को हम अकाउंटिंग प्रोसेस की हेल्प से आइडेंटिफाई करें या रीड करें तो हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा, और बेसिस में हमें क्लियर हो जाएगा कि अगर हम मैनुअल और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो कंपैरिजन में जो सीक्वेंस है वो तो सेम है. यानी मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम क्या आती है, बेसिकली आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल डाटा एंड प्रोड्यूस द फाइनेंशियल रिपोर्ट टू द इंटरेस्टेड यूजर्स, यही था. तो अगर हम मैनुअल और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो प्रोसेस की हेल्प से ही हम कंपैरिजन करें तो ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा इजी पड़ेगा. जैसे पहला आइडेंटिफाई. सो आइडेंटिफाइंग के बेसिस पे अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करना. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज कॉमन बोथ मैनुअल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. यानी देखो, कंप्यूटर में तो डाटा हम ही को इनपुट करना है, तो आइडेंटिफाइंग करने का काम मैनुअली होता है. वो डाटा बिजनेस के लिए रिलेवेंट है या नहीं है ये डिस्कस करना, और साथ ही साथ उसको इंटर करना. ऑल द बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द अकाउंटेंट एंड बोथ सिस्टम आर मैनुअली.
नॉट एज एन कंप्यूटराइज। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम कंप्यूटर का होगा, नहीं, कंप्यूटर में हम उस डाटा को इनपुट करेंगे एज एन डाटा। सो आइडेंटिफाइंग करने का काम मैनुअली में एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में सेम होता है। जैसे एज अ पर्सन, एज एन अकाउंटेंट, एज एन एम्प्लॉय, बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन या इवेंट्स होता है तो उस ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना हो मैनुअली या कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना हो, दोनों ही काम एज एन पर्सन, एज एन अकाउंटेंट करना पड़ता है। रिकॉर्डिंग की बात करें तो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में जो दूसरा डिफरेंस है मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के बीच में, जो दूसरा डिफरेंस का बेसिस है दैट्स इन रिकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्डिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्डिंग वी कैन से दैट कि मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम मैनुअली किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हमें ट्रांजेक्शन को इन करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी हमारा बेसिक रूल है, लाइक फाइनेंशियल एंट्रीज, लाइक जर्नल एंट्रीज, उसको सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड करना है, उसे हम ओरिजिनल एंट्रीज की तरह रिकॉर्ड करते हैं। वाइल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, डाटा कंटेंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन स्टोर एंड वेल डिजाइन अकाउंटिंग डाटाबेस, यानी आपने अगर एक बार डाटा को आइडेंटिफाई कर दिया तो वो ऑटोमेटिक जनरल में या सुटेबल लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाती है। ओके, सो द थर्ड बेसिस ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम इज क्लासिफिकेशन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन तो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में क्लासिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अकाउंटेंट की होती है। क्लासिफिकेशन मीन्स it is a manual accounting system. Transaction recorded are classified by posting them into the ledger which result in data duplicity of the transaction. यानी सिंपल सी बात है, जब हम मैनुअली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो हमें जर्नल भी खुद बनाना है, लेजर भी खुद बनाना है और उसको क्लासिफाई करने के साथ साथ उसको समराइज करने का काम भी अकाउंटेंट का होगा। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में ऑल द थिंग्स आर बेस्ड ऑन द डाटाबेस एंड द सॉफ्टवेयर। So computerized accounting system में while computerized accounting system the posting process is carried out by the internal sorting of data with the help of the application and utility software without any further process। यानी कि जो आइडेंटिफाइंग है ये तो मैनुअली होता है in the manual accounting system and computerized accounting system, but recording, classification और समराइजिंग, ये तीनों स्टेप आपका अगर हम मैनुअली देखें तो आपको पता है, अगर मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड सब्सिडी बुक प्रिपेयर करते हैं। और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में we will totally depend on the application and utility software। कई तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बस मैनुअली डाटा को एंटर किया और उसके बाद उसने ही उस डाटा को रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कंप्यूटर की होती है, बिकॉज कंप्यूटर में हम अकॉर्डिंग टू द नीड उसमें हम लोग क्या इंटर किए रहते हैं, यस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटर किए रहते हैं। एंड द फिफ्थ बेसिस बाय विच वी कंपेयर द मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इज एन एडजस्टमेंट एंट्री। अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री की बात करें सो एडजस्टमेंट एंट्री मैनुअली एंट्री की जाती है। व्हाट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री? सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन विच आर ओमिटेड और occurred after the preparation of the trial balance। यानी कुछ ट्रांजेक्शन बिजनेस में ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ऑकर होते हैं या बाय मिस्टेकली ड्यू टू द एनी एरर उन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। सो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, चाहे मैनुअली हो चाहे कंप्यूटराइज हो, कंप्यूटराइज में आपको पता है एप्लीकेशन की हेल्प से, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, ये सारे स्टेप करते हैं। बट एडजस्टमेंट एंट्रीज की अगर हम बात करें तो दीज आर द मैनुअली, क्योंकि अकाउंटेंट क्या करेगा,
कुछ एंट्रीज ऐसी होंगी जो छूट गई हैं, जो एंट्रीज हैं ऐसी हैं जो कि बाय मिस्टेकली रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, या कोई एरर फाइंड आउट हो गया, उस एरर को करेक्ट करने के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री को मैनुअली इंटर कर देंगे इन द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। सो आप देख रहे हैं मैन पावर की जरूरत है, चाहे आप कितना भी कंप्यूटराइज सिस्टम कर लो, मैन पावर के स्टेप की जरूरत है। और नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग द बुक्स। सो जो लास्ट स्टेप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें, so availability of the trial balance is essential to prepare financial statement in a manual accounting system, whereas in computerized accounting system the generation of financial statement is independent of the producing the trial balance, because such statement can be prepared by direct processing of originally shorted of transaction। ये तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रिपरेशन है अगर हम मैनुअली अकाउंटिंग सिस्टम की हेल्प से बना रहे हैं, ठीक है, मैनुअली बना रहे हैं यानी खुद से बना रहे हैं, तो हमें उसके लिए ट्रायल बैलेंस चाहिए एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज चाहिए, और आपने ये चैप्टर्स पढ़े भी होंगे। बट अगर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से क्या करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो नो नीड टू वरी, बिकॉज आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, एप्लीकेशंस हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी हेल्प करेंगे टू कंस्ट्रक्ट टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंक्लूड अ ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। सो यू कैन सी दैट जब हम मैनुअली अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं विच इज एन टाइम टेकिंग, हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक्स हो बिकॉज ह्यूमन बीइंग मिस्टेक्स कर सकते हैं, बट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में आपकी स्पीड बढ़ जाती है, एक्यूरेसी होती है, उसमें मिस्टेक्स तभी होंगे जब आपने बाय मिस्टेकली कोई गलत डाटा उसमें एंटर किया। और अगर हम बात करें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हो चाहे मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम हो, कुछ चीजें तो ऐसी हैं, कुछ स्टेप्स ऐसे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के जिसे आपको मैनुअली फॉलो करना है, लाइक एन आइडेंटिफाइंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री। बाकी चीजें आप कंप्यूटराइज चीजें फॉलो अप कर सकते हैं। सो प्लीज नोट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर कॉपी प्रॉपरली। Okay, so I hope today we discussed the last chapter of your syllabus, that's in a computerized accounting system, and I hope today we discuss all the things very clearly। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।